السلام علیکم ناظرین، کشمیر بلیٹن لے کر حاضر ہوں میں ممتاز سلام۔ ہیڈ لائنز پر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دفعہ 370 کا مقدمہ اویسی بینچ کے سپرد نہیں کیا جائے گا، سپریم کورٹ نے کی عرضی خارج، 5 رکنی بینچ بھی کرے گی سماعت۔ 5 رکنی بینچ دفعہ 370 مقدمہ پر جلد فیصلہ سنائے گی، وکیل ظفر اقبال نے ظاہر کی امید۔ عوامی نظم و ضبط کے لیے عمر عبداللہ خطرہ ہے، سپریم کورٹ میں حکومت کا موقف، 5 مارچ کو سپریم کورٹ میں ہوگی اگلی سماعت۔ یکم جون سے سینسس 2021 کا جموں کشمیر میں ہوگا آغاز۔ پریس کالونی سری نگر میں پی ڈی ڈی ملازمین کا احتجاج، مانگیں پوری کرنے کا حکومت پر دیا زور۔ جموں میں ایک اور علاقے کا نام کر دیا گیا تبدیل، جموں یاتری نواس کے قریب چوک کا نام کر دیا گیا امرناتھ چوک۔ پارلیمنٹری احاطے میں دلی تشدد کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج، قومی قائدین نے مودی سرکار پر اٹھائے کئی سوال۔ پیش کرتے ہیں خبریں تفصیل سے۔ آخرکار سپریم کورٹ نے دفعہ 370 کی برخواستگی کو چیلنج کی گئی درخواست کی سماعت وسیع تر بینچ کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پیر کے روز جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے دفعہ 370 کی برخواستگی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے درخواست گزاروں کی جانب سے اس مقدمے کی سماعت 7 رکنی وسیع تر بینچ کو سپرد کرنے کی عرضی کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 5 رکنی بینچ ہی اس کی سماعت کرے گی۔ تاہم عدالت عظمیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جموں کشمیر کی 1959 اور 1970 میں آئے فیصلوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، لہٰذا معاملہ 7 ججوں کی بینچ میں بھیجنا ضروری نہیں۔ آئینی بینچ نے سب سے پہلے درخواستوں کو بڑی بینچ کو بھیجنے کے مسئلے پر سماعت کی تھی اور 23 جنوری کو فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ درخواست گزاروں کی جانب سے دنیش دویدی، راجیو دھون اور سنجے پاریکھ نے دلیلیں پیش کی، جبکہ اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے مرکزی حکومت کا موقف رکھا۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ وینو گوپال نے دلیل دی کہ حریت پسند جموں کشمیر میں ریفرنڈم کا مسئلہ اٹھاتے آئے ہیں کیونکہ وہ جموں کشمیر کو الگ خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے مدد اس لیے مانگی تھی کیونکہ وہاں باغی گھس چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت جموں کشمیر میں مجرمانہ واقعات بتاتے ہیں کہ علیحدگی پسندوں کو پاکستان میں ٹریننگ دی گئی تاکہ یہاں توڑ پھوڑ کی جا سکے۔ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ریفرنڈم کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ انہوں نے آئین بینچ کے سامنے ایک ایک کر کے تاریخی واقعات کی تفصیلات دی تھی، ساتھ ہی کشمیر کا ہندوستان میں انضمام اور جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی برخواستگی کے معاملے کو وسیع تر بینچ سے رجوع کیے جانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک فریق کے وکیل نے بتایا کہ 370 کی برخواستگی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کے معاملے میں آج عدالت میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کی طرف سے اس معاملے کو وسیع تر بینچ سے رجوع کرنے کی درخواست مسترد کی ہے۔ جسٹس رمنا کی قیادت والی بینچ ہی اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ آج माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दिया कि 370 की जो अमेंडमेंट है उसको चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी उन याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था कि इस मामले को 5 जजेज के बजाय लार्जर बेंच को भेजा जाए। उस बिंदु पर सुनवाई हुई थी, आज उस पर फैसला आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो 5 जजेज की जो बेंच है जिसकी अध्यक्षता माननीय जस्टिस रमना कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया
कि प्रेमनाथ कौल और संपर्क प्रकाश की जो जजमेंट है उसमें किसी तरह का कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस मैटर को लार्जर बेंच को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यही जो 5 जजेज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, यही बेंच आगे भी मेरिट पे जो 370 के एब्रोगेशन से संबंधित जो भी याचिकाएं हैं उसकी सुनवाई करके फैसला देगी। दूसरी तरफ कश्मीर दरख्वास्त गुजार के वकील जफर इकबाल ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच ने आर्टिकल 370 की तमाम दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उन दरख्वास्तों को वसी तर बेंच से रुजू करने का कोई जवाज नहीं है। उन्होंने बताया कि यही 5 रुकनी दस्तूरी बेंच अब इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा और फैसला सुनाएगा। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि यह बेंच जल्द इन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए फैसला सुनाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 370 की तमाम पिटीशंस पर अपना फैसला सुनाया जो रिजर्व किया था ऑर्डर्स के लिए। तो आज ऑर्डर सुनाया, उसमें कहा गया है कि भाई इसमें कोई मवाद नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है कि इसको एक बड़े बेंच को रेफर किया जाए, बल्कि यही 5 जजेस का बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पिटीशन को सुनेगा। अभी नई डेट तो फिक्स नहीं की है, बट हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको सुप्रीम कोर्ट सुनकर इस पर अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। अभी नेक्स्ट डेट तो इसमें नहीं कोई फिक्स की है उन्होंने। बहरहाल उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसकी सुनवाई शुरू की जाएगी और इस पर फाइनल कोई अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की हिरासत से मुताल्लिक़ मुक़दमे की अगली समाअत 5 मार्च को होगी। वाज़ेह है, उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए उमर अब्दुल्ला की हिरासत और उन पर लगाए गए PSA को चैलेंज किया है, जिसके पीर के रोज़ अदालत उस्मा में समाअत हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से सारा अब्दुल्ला के चैलेंज का जवाब दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने इस मुकदमे की समाअत की। ख्याल रहे हुकूमत ने PSA लगाने और उमर अब्दुल्ला की हिरासत पर अपना जवाब पेश करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला अवाम और नज़्म व ज़ब्त के लिए खतरा हैं। अदालत उस्मा ने इस मुकदमे की अगली समाअत 5 मार्च दी है। जुनैद अज़म मटू ने जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लाते हुए उसकी तकसीम के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा है कि वो मरकज़ के इस फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अज़ीम मटू ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से साल गुज़िश्ता के आईनी दफ़ा 370 और 35A की तनसीख और साबिक़ रियासत जम्मू कश्मीर को 2 विफाक़ी हिस्सों में मुनक़सम करने के फ़ैसलों के साथ में ज़ाती तौर पर मुत्तफ़िक़ नहीं हों। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की रिवायती सियासी जमातों ने हमेशा इस दफ़ा का इस्तेहसाल किया है। मौसूफ मेयर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने भी भारत के लिए मुल्क के किसी दूसरे इलाके के लोगों से कम कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, लेकिन उनका शाज़ुन नाज़र ही जिक्र किया जाता है। और इधर ज़िला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीर की सुबह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान गोलाबारी के तबादले में एक रिहायशी मकान को जज़वी नुकसान पहुंचा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पूंछ के मुंडेर सेक्टर में LOC पर पीर की सुबह पाकिस्तानी फौज की तरफ से अगली चौकियों और मुत्तसिल देहात पर गोलाबारी शुरू हुई, जिस पर भारतीय फौजी एहलकारों ने उसी मुनासिबत से जवाब दिया। बताया गया है कि दोनों जानिब से होने वाली गोलाबारी के तबादले में बसवनी गांव के मौलवी मुश्ताक के मकान को एक गोला लग गया, जिसके नतीजे में उस मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा और ताहम मकीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
اور اب رخ کرتے ہیں دلی کا. پارلیمنٹ کے احاطے میں آج اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے دلی فسادات پر احتجاج ہوا ہے. کانگریس کی طرف سے پارلیمنٹ کے احاطے میں آج وزیر داخلہ غرام اور جنوسائڈ ہی کہنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ سرکار کمپلیسٹ ہے اس میں، اور اگر کوئی کمیونل رائٹ 2 دن تک چلتا ہے تو یقیناً سرکار کی انیفیشنسی نہیں ہے، بلکہ سرکار کی پوری رضامندی، سرکار کی کمپلیسٹی، اور پھر پولیس نے تو ساتھ دیا. کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ وہ ویڈیو جو 4 لڑکے زمین پر پڑے رہے تھے، ان کو کہا جا رہا تھا کہ جن گن من پڑھو، ان سے کہا جا رہا تھا کہ وندے ماترم پڑھو، اس میں سے ایک لڑکے کی موت ہو گئی سلمان کی، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ جب اس کی لاش کو گھر لایا گیا تو اس کے کھوپڑی سے خون بہ رہا تھا، اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا. اور کیسے ایک آئی بی آفیسر کو مار دیا گیا، کیسے ایک 85 سال کی عورت اپنے ہی گھر میں جل گئی، کیسے 2 بھائیوں کی لاش کو ایک ساتھ اٹھایا گیا، ہزاروں کروڑ کی جائیداد جل گئی ہے. تو یہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی ناکامی ہے، سرکار کی غلطی ہے، اور سرکار کی ذمہ داری ہے اس کی پوری. لیکن سرکار نے شانتی کی اپیل کی. دیکھیے کہاں پردھان منتری نے صرف 120 لفظ استعمال کیے 45 لوگوں کی موت پر. یہ بھارت کے مرنے والوں کی محبت ہے پردھان منتری کو. کیا آپ ایک بیان نہیں دے پاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں دیتے؟ کیا روک رہی تھی پردھان منتری کو؟ کیوں نہیں کہا پردھان منتری نے؟ اور دیش جانتا ہے کہ ان کا ایک ایم ایل اے کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر الٹیمیٹم دیتا ہے. تو کیا وہ ایم ایل اے اپنی مرضی سے بولا تھا؟ نہیں، اس سے کہا گیا تھا کہنے کے لیے. کیا انوراگ ٹھاکر نے اپنی مرضی سے کہا؟ نہیں، ان کو کہا گیا تھا کہنے کے لیے. یہ تو پورے سٹیٹمنٹس ہیں نا، اور اسی وقت سب دلی میں سب گڑبڑ ہوتی ہے. آپ کے پارٹی سے بھی بڑی زہریلے بیان بازی ہوئی. ہاں، وارث پٹھان نے جو بات کہی تھی واپس لے لی، معذرت چاہی، اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوا. بتائیے ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اب امن کی ریلی نکال رہے ہیں لوگ. بتائیے اب یہ تو اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قانون ہے، قانون اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ سرکار نہیں چاہتی. سلیکٹیو یوز آف لا ہوتا ہے ہمیشہ. نریش گجرال اگر ایک ایم پی ہو کر لیٹر لکھتے ہیں گورنمنٹ کو کہ بھائی میں نے کتنے مرتبہ فون کیا اور پولیس مدد کے لیے نہیں آئی، تو کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ کیا بتا رہا ہے؟ 100 کی ریکارڈنگز ہے جس میں پولیس والے گالی دے رہے ہیں ان لوگوں کو ملے کہہ کر. ابھی ایک ریکارڈنگ ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے کہ جب پولیس جا کر انسپیکشن کر رہی ہے برن پراپرٹی کا تو کیا کہہ رہی ہے پولیس؟ دیکھ لیجئے. تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ آپ نے 2002 کا تلنا کیسے کر دیا اس دنگے سے؟ اس لیے کہ 2002 میں بھی اسی طرح 2 دن تک سرکار خاموش بیٹھی رہی. اسی طرح احسان جعفری نے بھی کئی فون کیے تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے، جس طرح نریش گجرال نے کہا کہ میں نے ہی فون کیا تھا. اسی طرح وہاں پر دنگے ہوئے، اسی طرح بربادی ہوئی. تو اس سے تھے کہ اس وقت کے مکھیہ منتری موڈی صاحب تھے، وہ یاد رکھیں گے، مگر وہ بھول ہی گئے، 2002 کو بھول گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں تو ان ایکسپیرینس تھا. اب تو بڑے ایکسپیرینس ہو گئے. آپ کیوں نہیں روک پائے؟ پھر اس لیے نہیں روک پائے کیونکہ آپ کے لوگ وہاں پر ان بیانات کو دے کر ماحول کو خراب کیے. پوری پلاننگ ہوئی، پورا پروگرام بنایا گیا، اور اس لیے گڑبڑ ہوئی. اور دلی فسادات میں ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ دلی کے گرو تیغ بہادر ہاسپٹل میں 38 اموات ہوئی ہیں. لوک نائک ہاسپٹل میں 3، جگ پرویش ہاسپٹل میں 1 اور ڈاکٹر رام منوہر لوہیا میں 4 اموات ہوئی ہیں. گزشتہ رات افواہوں کی وجہ سے دلی میں بے چینی کا ماحول دیکھا گیا اور ایک علاقے میں بھگدڑ سے ایک شخص کی بھی موت ہوئی ہے. اس دوران دلی کے شاہین باغ کے آس پاس کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ ہے. بعض فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے شاہین باغ تک مارچ کے اعلان کو لے کر پولیس نے چوکسی اختیار کی ہے. دلی کے وزیر گوپال رائے نے بتایا ہے کہ مصطفی آباد کی عیدگاہ میں راحت کیمپ لگایا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اگر لوگ علاقوں میں بھی یہ کیمپ لگائے جائیں گے. دلی کے تشدد سے متاثرہ شیو وہار علاقے میں آج اضطراب آمیز سکون دیکھا گیا. واضح ہے کہ شیو وہار غیر معمولی تباہی ہوئی ہے، اس میں اور کئی دکانوں کو اس علاقے میں جلا دیا گیا تھا. دوسری طرف دلی کے مصطفی آباد میں واقع عیدگاہ میں بعض متاثرین کو رکھا گیا ہے. دلی کے وزیر گوپال رائے نے متاثرین سے ملاقات کی ہے اور حکومت کی طرف سے مدد کا بھی تیقن دلایا ہے.
एक समाधान निकले कि जिससे कि सही लोग पकड़े जाएं, कोई भी दोहरा मापदंड न अपनाया जाए, जो भी दंगे के दोषी हैं वो सब पकड़े जाएं, लेकिन बेगुनाह और बेकसूर लोग न पकड़े जाएं। इसको लेकर के अभी हमने पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव साहब से बात की है। 3 बजे हम पुलिस हेडक्वार्टर में उनसे मिलने भी जा रहे हैं, जिससे कि ये जो समस्याएं आ रही हैं इनको लेकर के हम जो है डिटेल बातचीत कर सकें। कल जो पूरे दिल्ली के अंदर अफवाह फैलाई गई और पूरे दिल्ली के अंदर एक डर का माहौल पैदा किया गया, उसको भी, चूंकि कई लोग अभी भी चाहते हैं कि ये अभी भी इतने नुकसान से, इतने इंसानों की जान से उनको संतुष्टि नहीं मिली है। कल शाम की घटना ये दिखा रही है कि कई लोग इसे दिल्ली भर में फैलाना चाहते हैं। तो पूरे दिल्ली के अंदर कैसे इन अफवाहों पे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसे नियंत्रण किया जाए, अभी 3 बजे पुलिस कमिश्नर से बैठ करके उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ एसडीएम हमारे ड्यूटी पर जो हैं उनको अभी हम यहाँ का सारा चार्ज जो है वो संभाल रहे हैं, और यहाँ वक्फ बोर्ड की जो टीम है वो संभाल रही है। एरिया के जो हमारे एमएलए हैं, जो अदर वॉलंटियर्स आ रहे हैं, हम अपने पार्टी के वॉलंटियर्स को भी यहाँ पर अब खिदमत के लिए, सेवा के लिए लगा रहे हैं कि जो दिन रात यहाँ पर लोगों की सेवा करेंगे। और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि 3 दिनों तक दिल्ली में लूट मार, क़त्ल गारत गिरी होती रही, लेकिन किसी भी मरकजी वजीर ने कोई बयान नहीं दिया। किसी भी वजीर ने मुतासरा इलाकों में जाने की जहमत तक गवारा नहीं की। पुलिस और हुकूमत सिर्फ तमाशा देखते रहे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उस पर मुबाहिसा होना चाहिए। दिन रात 24/7 दंगे होते रहे, लोग एक दूसरे को मारते रहे, हजारों मकान जल गए, दुकानें जल गई, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो गए, कई लोग गोली का निशाना बने। तो तब तो केंद्रीय सरकार ने न किसी मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, रोकने के लिए भी स्टेटमेंट नहीं दिया, न कहीं मंत्री स्पॉट पे गया और न कहीं कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर देखा। और पुलिस भी तमाशाई बैठी, केंद्रीय सरकार भी तमाशाई बैठी, दिल्ली की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज थी, वो सब तमाशाई बैठी थी। तो ये सरकार तो चाहती थी कि ये दंगे होने चाहिए। इसी तरह से तो इसीलिए तो ये 3-4 साल से तमाम विवादित बिल लाए गए थे कि ये हम चाहते हैं सदन में डिस्कशन होनी चाहिए, लोकसभा में भी डिस्कशन होनी चाहिए, राज्यसभा में डिस्कशन होना चाहिए, ताकि इस पर चर्चा होनी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कश्मीर बुलेटिन। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता।
ویلکم بیک. آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں. جموں میں 2 مشہور چوکوں کے نام تبدیل ہونے کے بعد اب یاتری نواس کے قریب ایک اور چوک کا نام تبدیل ہو کر بابا امر ناتھ چوک ہوگا. خیال رہے بی جے پی کی قیادت والی جموں میونسپل کارپوریشن نے جموں کے پرانے شہر میں واقع سٹی چوک کا نام بدل کر بھارت ماتا چوک اور سرکولر روڈ چوک کا نام اتل جی چوک رکھ دیا. اور جب جموں کشمیر کے بعض چوکوں کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ حال ہی میں منعقد جموں میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس میں لیا گیا ہے. اور جے کے اے یو ایم کی جھیل دل کے اندرونی علاقوں میں منشیات مخالف ریلی. جموں کشمیر اکیڈمی آف یونیفائڈ مارشل آرٹس نے منشیات کے وبا کے خلا خمخواہ اور کے لیے پیر کے روز شہرا آفاق جھیل ڈل کے اندرونی علاقوں میں گھر گھر اور در در مہم چلائی. ڈرگس اور اسپورٹس ان کے پروگرام کے جاری رکھتے ہوئے جے کے اے یو ایم اے کے درجنوں کارکن سری نگر کے نوپورہ میں علاقے میں جمع ہوئے اور منشیات کے خلاف اپنی مہم شروع کی ہے. کارکنوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات کے خلاف نعرے درج تھے. وہیں جموں کشمیر اے یو ایم اے کی جانب سے قیام ڈل گیٹ میں طلباء نے انسداد منشیات سے متعلق شعور بیداری ریلی منظم کی تھی. جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آج ٹیگ لائن ہے ڈرگس آؤٹ اسپورٹس ان سے نو ٹو ڈرگس اینڈ یس ٹو اسپورٹس. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اس ایریا میں ڈل لیک کے انٹیریئر ایریا میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی گھر ہیں ان میں ہمارا ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ ہو جائے, یہ اویئرنیس پہنچ جائے ڈرگس آؤٹ اسپورٹس ان, تاکہ پیرنٹس اور بچوں کو آپس میں ہم بول دیں کہ آپس میں ٹائم بتاؤ, کیونکہ پیرنٹس اور بچوں میں آج کل بہت سی ڈفرینسز ہو گئے ہیں, ٹائم گیپ بہت رہی ہے. تو ہم یہی چاہیں گے, پیرنٹس سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے, ان سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ بچے کو جو نشے میں آ جاتا ہے بچہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس نہیں کر پاتا ہے اور نہ بول پاتا ہے. تو ہم یہی ہماری کوشش رہے گی جتنے بھی یہاں پہ گھر ہیں ان کو ہم ڈور ٹو ڈور جائے, ہمارے جو پیمپلیٹس ہیں وہ ان تک پہنچائے اور ہماری میسیج جو ہے وہ ان تک پہنچائے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دو اور ان کو جتنا ہو سکے ان کو سپورٹس میں انوالو کرو. سپورٹس ایسی ایک چیز ہے جس سے آپ کے دونوں چیز جو ہے ایٹ اے ٹائم کام کرتا ہے, ایک تو باڈی بھی اور فزیکلی مائنڈ بھی. تو اسی لیے ہم نے آج یہ کیمپیننگ سٹارٹ کی ہے یہاں پہ. اور میں جے کے اکیڈمی کی ممبر ہوں. ہماری جو یہ جے کے اکیڈمی پچھلے 1 سال سے ہم اسی پہ زیادہ کام کرتے ہیں, ڈرگس آؤٹ اسپورٹس ان پہ. اس اکیڈمی کا ہمارا انیشیٹو یہی ہے, اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرگس کے بارے میں ہمیشہ اویئرنیس پروگرام کرتے رہتے ہیں. ہر ایک جگہ پہ کالجز میں, اسکولس میں ایسی ریلی نکالتے, نان اسموکنگ ڈے پہ ریلی نکالتے ہیں تاکہ ہم بچوں کو اویئر کر سکیں ڈرگس کے بارے میں کہ ڈرگس سے ان کی لائف خراب ہوتی ہے. ڈرگس کو اپنی لائف سے دور کر کے اسپورٹس میں اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. اور آج ہمارا جو یہ ریلی کا مقصد ہے یہ بھی یہی ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے پیرنٹس کو اویئر کریں کہ ہمارا جو یہ انیشیٹو ہے آپ بھی اس کو اپنائیے, اسپورٹس میں اپنے بچوں کو انٹرسٹڈ کروائیے اور ڈرگس سے دور کرائیے. اور تاکہ ہم بچوں میں بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں, آپ اپنے فرینڈس کو, آپ کے ریلیشن میں ہیں جو بھی ہیں, ان کو کسی کو بھی دیکھ رہے ہو ڈرگس وغیرہ کر کے, ان کو اویئر کراؤ کہ ڈرگس ہماری لائف, ہماری فزیکل مینٹل جو بھی ہیلتھ ہے وہ خراب کر دیتی ہے. جموں کشمیر پولیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں پیر کی صبح عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم چھڑ گیا ہے. ایک پولیس ترجمان نے کہا کہ پیر کی صبح سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلی کہ پلوامہ کے ترال علاقے میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم آرائی چھڑ گئی ہے جو کہ اکثر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی بے بنیاد افواہوں پر کان نہ دھریں.
यकम जून से मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के तहत सेंसस 2021 का आगाज़ होगा। पीर के रोज़ मुतल्लिक़ा महकमा जात के ऑफिसरान ने कहा है कि ये आदाद शुमार 1881 से ताहाल 16वां और आज़ादी के बाद से 8वां होगा। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में ये दूसरा मरहला 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। घर घर पहुंचकर मरदमशुमारी के अमल को 1 जून से 15 जुलाई के दरमियान अमल में लाया जाएगा। श्रीनगर के सरकारी अमर सिंह कॉलेज में 1 हफ्ते पर मुश्तमिल नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा को दर्स व तदरीस के असली तकनीकों से वाकिफ करवाया गया। आजकल की दुनिया एक नए दौर की तरफ जा रही है, खासकर साइंस टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसका दूसरा नाम हम देते हैं मशीन लर्निंग। इसका मकसद यही है कि उस तरह के कंप्यूटर्स तैयार किए जाते हैं जो बहुत सारे काम वो करे जो इंसानी जहन करता है, और ये काम ये कंप्यूटर्स या मशीन्स इस तरह कर ले कि इसमें इंसानों का कोई इंटरवेंशन न रह जाए। और इससे ये फ़ायदा होता है कि ये डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोबोट्स में इस्तेमाल की जाती है ये टेक्नोलॉजी, और सर्जिकल या डायग्नोस्टिक के साथ डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये इंजीनियरिंग और मटेरियल्स का स्टडी करने और स्ट्रक्चर एलिडिसेशन में भी इस्तेमाल की जाती है। अब मकसद इसका यही है कि हमारी जो नई पौध है वो पीछे न रह जाए। उनमें भी हम ये उजागर करना चाहते हैं कि दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कि इनके नए नए मौज़ूआत पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। तो वही मकसद लेके अपने बच्चों को भी हम रोशनास इससे कर लेंगे। उनके लिए भी हम एक सेक्शन हमने रखा है। बाकी जो मुद्दीन आए, चाहे वो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है या स्कॉलर्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, मेडिकल कॉलेज से या बहुत सारे कॉलेजों से आए हैं, उनको इस टेक्निक से बहुत फ़ायदा मिलेगा। शजरकारी मुहिम के तहत डोडा में 7वीं बटालियन ने भारतीय विद्या मंदिर भट्टापरेवती जुड़ा इनखाद अमल में लाया गया है, जिसमें फौजी एहलकारों के हमराह तलबा ने हिस्सा लिया। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने आज डीसी डोडा डॉक्टर सागर से मुलाकात की है। उन्होंने डीसी को एक याददाश्त पेश करते हुए अपने मसाइल और मुतालिबात से वाकिफ करवाया। वफ्द की सरबराही समाजी कारकुन स्वर्ण सिंह ने की है। वफ्द ने मुतालिबा किया है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की जाएँ। मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह है। ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे लिए कुछ किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कुछ किया जाए। और इसी मसले में आज हम डीसी डोडा से भी मिले और उनको हमने एक मेमोरेंडम पेश किया, और उन्होंने ये चीज़ हमें आगे BDO साहब को तक मतलब फॉरवर्ड की ये चीज़। आपके लिए भी है। आप
LG जम्मू कश्मीर ने आज श्रीनगर में SMC अहदेदारान के एक आला सतही इजलास में शिरकत की है। इस मौके पर LG ने कॉरपोरेशन की जानिब से अंजाम दी जाने वाली खिदमात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। और LJP के कौमी तर्जुमान और यूथ लीडर संजय सराफ ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी नौजवानों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के सियासी अमल में हिस्सेदारी के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उनका है और उन्हें आगे आना चाहिए। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने LJP में शमूलियत इख्तियार की है। मोबाइल में इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है। गौरव मुस्लिम भाइयों ने हमारा जी खा लिया। खाया होता है एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी। मैं तो पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए कश्मीर के यूथ से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो सामने आ जाए। फ्यूचर उनके हाथ में, कश्मीर उनका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनका है। अब तो हम जम्मू कश्मीर लद्दाख कह ही नहीं सकते, अपन जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर को फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए वो कश्मीरी यूथ के हाथ में, कश्मीरी यूथ को सामने आना चाहिए, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए अपने आप, क्योंकि उनको ही फ्रंट लेना चाहिए। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस प्लेस। मैं तो डिमांड किया हूँ, मेरी पार्टी की डिमांड है, हमारा मैनिफेस्टो भी जो बनेगा उसमें भी डिमांड रहेगी स्टेटहुड की, और ऊपर वाले की रहमत से अगर हमें कुछ मिल गया तो फर्स्ट हमारा जो मेन स्ट्राइकिंग शॉट होगा वो स्टेटहुड के लिए होगा। नहीं, कोई कश्मीरी पंडित की रैली नहीं थी। नहीं, वो क्लियर नहीं है। वो बंदा कोई कहीं से भी उठ के आ जाए, नहीं, कोई भी बंदा कहीं से उठ के आ जाएगा तो कश्मीरी पंडित अगर हमें रैली यहाँ पर करनी है, वो हम सब साथ में यहाँ पर बैठे हैं, वो हम सब मिल बांट कर पीस रैली करेंगे। अब दिल्ली से कोई हमको कश्मीर में सिखाएगा पीस रैली करते हैं या कैसे करते हैं? वी डोंट एग्री विद दैट। जो कश्मीर में, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी मुस्लिम है, उसको पीस रैली करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो उसको पता है कैसे पीस रैली करनी है। अब दिल्ली से कोई भी कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम हो या कोई सिख हो, ईसाई हो, कोई भी उठ के आ जाएगा ये कहकर कि मैं कश्मीर में जाकर पीस रैली करूंगा, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम हियर लाइक दैट। उसी पर तो मैंने आज आवाज उठाई है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ अगर काम नहीं कर रही है तो फिर क्या हो रहा है? अगर अभी तक वो लोग कहते थे कि पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहा है, तो इससे जो क्लियर ये हो रहा है कि पॉलिटिशियन काम कर रहा था नहीं कर रहा था वो तो क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 5 महीने से सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ डायरेक्टर के हाथ में, सेक्रेटरी के हाथ में, कमिश्नर सेक्रेटरी के हाथ में, तो उनको तो काम करना चाहिए। सड़कों की इतनी बुरी हालत है, बिजली नहीं है, बाकी सब प्रॉब्लम्स है, तो वो तो सब इनकी इश्यूज है। दे हैव टू सॉर्ट इट आउट। तो हम तो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा है स्टेट के लिए। वो तो हर जगह के स्टैंड रहेगा कि एलजेपी इलेक्शन ऑफ इट्स ओन इंडिविजुअली लड़ेगी इलेक्शन हर सीट पर। भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है। गौरव मुस्लिम भाइयों ने हमारा जी खा लिया। खाया होता है एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी। खान साहब हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है, शारटंग में रहते हैं, बहुत सीनियर लीडर है, इनको मैं वेलकम कर रहा हूँ पार्टी में। जुनेद भाई ये जेडीयू के साथ थे, उसके बाद बीजेपी के साथ। इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है। गौरव मुस्लिम भाइयों ने हमारा जी खा लिया। खाया होता है एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी। खान साहब हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है, शारटंग में रहते हैं, बहुत सीनियर लीडर है, इनको मैं वेलकम कर रहा हूँ पार्टी में। जुनेद भाई ये जेडीयू के साथ थे, उसके बाद बीजेपी के साथ। इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है। गौरव मुस्लिम भाइयों ने हमारा जी खा लिया। खाया होता है एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी। खान साहब हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है, शारटंग में रहते हैं, बहुत सीनियर लीडर है, इनको मैं वेलकम कर रहा हूँ पार्टी में। जुनेद भाई ये जेडीयू के साथ थे, उसके बाद बीजेपी के साथ। इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है। गौरव मुस्लिम भाइयों ने हमारा जी खा लिया। खाया होता है एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी। खान साहब हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है, शारटंग में रहते हैं, बहुत सीनियर लीडर है, इनको मैं वेलकम कर रहा हूँ पार्टी में। जुनेद भाई ये जेडीयू के साथ थे, उसके बाद बीजेपी के साथ। इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है। गौरव मुस्लिम भाइयों ने हमारा जी खा लिया। खाया होता है एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी। खान साहब हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है। और कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया, जिन्होंने तअत्तुल से 2-4 तनख्वाहें
वज़ाइफ जारी करने और दीगर मुतालिबात की यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया है। एसएडीएस का लूटना बंद करो, पीडीसी एसएडीएस लूटना बंद करो, टैक्सेबल मुलाजिमों को मुस्तकिल करो, नीड बेस्ड मुलाजिमों को मुस्तकिल करो, पेंशन फवाइद को वागज़ार करो, पावर प्रोजेक्ट की बर्बादी बंद करो, पावर प्रोजेक्ट की बर्बादी बंद करो। मागरेब प्रेसिडेंट कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एसोसिएशन, चूंकि आज जो हमने एहतजाज का प्रोग्राम यहाँ बनाया था, इसका मकसद रियासती जम्मू कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मुलाजिम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो मसाइल हैं, जिनमें 7वें तनख्वाह कमीशन के एरियर्स पूरी मुलाजिम, यहाँ जितने मुलाजिम सरकारी मुलाजिम हैं उनको मिले हैं, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में काम करे मुलाजिमों को आज तक ये नहीं मिला, जिससे कम से कम नुकसान जो है क्लास 4 एम्प्लॉइज का 8,500 रुपया सालाना नुकसान हो रहा है इनके न मिलने से। इसके यहाँ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास 3,000 करोड़ रुपए उनके पीडी के बस बाकी है, लेकिन पीडी पेंशनों को रिलीज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये एरियर्स नहीं मिल रहे हैं, मुलाजमीन सफर कर रहे हैं। इसी तरह पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पेंशन जो 2012 में छीना गया, आज तक उस पावर कॉर्पोरेशन की पेंशन छीनने की वजह से आज तक मुलाजिम परेशान हाल है, मुलाजिमों को पेंशन नहीं मिल रहा है। जो फाइल लॉ डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पीडीडी ने रिकमेंड करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है, 3 बार भेजी है, 3 बार वापस आई है। अब मुलाजिम पीसा जा रहा है कि 1999 में से 1995 तक जितने मुलाजमीन हैं वो पावर कॉर्पोरेशन के हैं या पीडीडी के हैं, इसमें पीसे जा रहे हैं। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट को कि जो लॉ ओपिनियन आई है उसने ये क्लियर किया है कि 1995 में पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड हुई है एज कंपनी, लेकिन मुलाजिमों को पेंशन छीना जा रहा है। 2012 से जितने हमारे लोग रिटायर हुए आज वो तड़फ रहे हैं, उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ पावर हाउस में हालात, पावर प्रोजेक्ट की हालात इंतहाई तबाहकुन है, क्योंकि 2018 में यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर लीव पर चला गया, तब से आज तक इस कॉर्पोरेशन में एडिशनल चार्ज कमिश्नर सेक्रेटरी को मिला है, जिसकी बदौलत आज हमारे पावर प्रोजेक्ट की हालात इंतहाई अबतर है, पावर हाउसों की हालात तबाहकुन है। अगर यही हालात रहे तो ये पावर कॉर्पोरेशन डूब जाएगी। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर हमारे पेंशन फवाइद को वागज़ार किया जाए और जो 1995 के बाद जितने मुलाजिम यहाँ नौकरी में लगे हैं, एसआरओ में लगे हैं, उनके लिए भी एक पॉलिसी मरतब किया जाए और जो हमारे पे कमीशन के एरियर्स है इनको फौरी वागज़ार किया जाए। डिलीवर कंट्रैक्चुअल और हक मुलाजिमों को मुस्तकिल किया जाए। साथ साथ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो एसेट्स है उनको गैर मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ लूट डाल जा रहा है, बाकी महकमा जात उनको लूट रहे हैं। अगर एक कॉर्पोरेशन कल डूबेगी उसकी बुनियादी वजह एडमिनिस्ट्रेशन और पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की इंतजामिया की नाअहली है, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो बार बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हम गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं इसकी तरफ फौरी तवज्जो दी जाए ताकि हम मुलाजिम को इंसाफ। रामबन में आज सुबह एक ट्रक दरियाई चिनाब में गिर गया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया जबकि ड्राइवर लापता बताया गया है। यह हादसा आज सुबह पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर से उधमपुर की तरफ रवाना ट्रक पीर की सुबह दरिया चिनाब में जा गिरा। अगरचे इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, लेकिन वह खुदा के करम से बच गया है। ये डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो ये नेशनल हाईवे है, इस पे आए रोज हादसात होते रहते हैं। तो पिछले 4-5 माह से आपने देखा बहुत सी सारी जगहों पे हादसात हुए। सर्दियों के मौसम में जब भी बारिशें होती है तो चाहे 1 या 2 घंटे बारिश होती है तो पसिया गिरते हैं, पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। तो आज भी मैंने सुना कि ये अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। डिगडोल वगैरह बेट चश्मा, ये पूरा एरिया जो ये हादसाती एरिया हुआ है, बन चुका है। यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो 4 लाइन प्रोजेक्ट की तामीरात चल रही है, जिसमें एचसीसी जो है पहले काम कर रही थी, तो एचसीसी ने इसको अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो है आए रोज ये हादसा होते हैं।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आए रोज अखबारात और टीवी चैनल्स की सुर्खियों में रहती है, कभी जमीनी तोदे खिसकने की वजह से तो कभी हादसात की वजह से। आज भी इसी तरह का एक हादसा रामबंद के नजदीक मिहाड़ के मकाम पर पेश आया, जबकि एक ट्रक श्रीनगर से उधमपुर की ओर जा रहा था कि अचानक मिहाड़ के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में गिरकर दरियाई चिनाब में जा गिरा। जबकि बताया जाता है कि अभी भी जो एक बॉडी है वो दरियाई चिनाब में लापता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरा शख्स जख्मी की हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। रामबंद बानिहाल कौमी शाहरा पर अक्सर इस किस्म के हादसात रोनमा होते हैं, जिसमें अभी तक कई जानें जाया हुई है। या तो ये हादसात ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से होते हैं या फिर सड़क की खराबी की वजह से देखने को मिलते हैं। कई साल पहले अगरचे सरकारी तर्ज पर रामबंद बानिहाल के दरमियान 4 लेनिंग का काम शुरू किया गया था, ताहम कई बार डेडलाइन देने के बावजूद भी अभी तक काम मुकम्मल तरीके से मुकम्मल तौर नहीं हो पाया है और न ही उस पे आजकल कोई काम चलाया जा रहा है। हालांकि जगह जगह पर खोदाई की गई है, जिसकी वजह से आज भी पत्थर और जमीनें तोदे खिसक आते हैं, जिसका सारा खमियाजा इस कौमी शाहरा पर चलते न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम को बल्कि बैरूनी रियासतों से आए हुए सयाहों को भी भुगतना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के साथ साथ मरकजी सरकार कोई ठोस इकदाम करे ताकि रामबंद बानिहाल के बीच में सड़क को 4 लेन में तब्दील करे ताकि हादसों को मजीद रोका जा सके। आमिर के साथ रामबंद से 4 TV के लिए मैं मीर मुदस्सिर। वादी कश्मीर जिसको कुदरत ने हसीन नज़ारों से सजाया है और वहीं अहलियाने कश्मीर में भी कुछ ऐसी सलाहियतें दी हैं कि वो यहाँ के नामसाइल सूरत-ए-हाल के बावजूद मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया काम कर जाते हैं। बिलखुसूस कश्मीरी नौजवान अपनी इख्तियारी सलाहियतों और अपनी जहानत तालीमी, अदबी और साइंसी मैदानों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे ही नौजवान में ज़िला पुलवामा के देहात चंद्रगाम तराल के 23 साल नौजवान अदनान शफी हैं, जो 12 बरस की उम्र से ही मुताल्ले का शौकीन हैं और उसी शौक़ जुस्तजू लगन ने अदनान शफी को 23 बरस की उम्र में एक बेहतरीन कलमकार और 3 किताबों का मुसन्निफ बना दिया है। अदनान शफी न सिर्फ मुसन्निफ हैं बल्कि वो अंग्रेज़ी के बेहतरीन पोएट शायर भी बन गए हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अंग्रेज़ी में लिखे हुए उनके कॉलम और अशआर को न सिर्फ मुमताज़ अखबारात में जगह दी जाती है बल्कि उन्हें क़ारीन काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। अदनान शफी अपनी कम उम्री में उस मकबूलियत के लिए सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद अपने घर वालों, दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनकी हर लम्हा हिम्मत अफजाई की है। ताहम हुकूमत को भी चाहिए कि वह अदनान जैसे नौजवानों की सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करें। मेरा नाम अदनान शफी है। आई एम ए स्टूडेंट। तो अभी तक नाउ दैट आई हैव पब्लिश्ड 3 बुक्स। 3 बुक्स मैंने पब्लिश की है, टीयर्स फॉल इन माई हार्ट, स्पिरिट ऑफ नेचर एंड ड्रीमर्स नेवर डाई। तो इसके अलावा मेरी पोइट्री जो है दैट टू आर पब्लिश इन डिफरेंट मैगजीन्स, जो नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में पब्लिश हुई है। इसके अलावा आई एम ए कॉलमिस्ट और मैं बहुत से कॉलम्स डिफरेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर में पब्लिश होते हैं एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उनमें भी मैंने अपने कॉलम्स पब्लिश किए हैं। तो इसके अलावा इंस्पिरेशन इज़ माई फादर, के फादर ने मुझे ये डायरेक्शन दी। महकमा आबिश में खिदमत अंजाम देने वाले आरजी मुलाजिमीन ने आज मेरगुंड पटन में एहतजाज किया है। उन्होंने महकमे के एक आला अहदेदार के खिलाफ अपनी बरहमी जाहिर की। उन्होंने अपने देरीना मुतालिबात पूरे करने का हुकाम पर जोर दिया। महकमा सेरिकल्चर सत लगातार काम कर तमाम डिपार्टमेंटन कर 17 सास वस तम कर कहें रेत गो वरी गो आज वस गई मार्च गो स्टार्ट दानन हंद पे हेतन 6 रेत 7 रेत करा करू छुट्टी मकल वन प्रोटेस्ट कोर्मुत दिमान कर यीतस कालस न सोन दितुम सोन खून दम तीतस कालस हड़ताल जारी। अगर
खबर क्या दिन और राजनीति। कोलगाम में बीडीसी चेयरमैन और नूराबाद के मुकामी लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर DH पुरा में मिनी सेक्रेटरीट के रूबरू धरना दिया। उन्होंने मुतालिबा किया है कि उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए और उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। जानते हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो आप बहुत बार नूराबाद आए हैं, तो मुद्दा इस प्रोटेस्ट का यही है। आज 3-2.5 महीने हो गए मुझे भी BDC चार्ज लिया हुआ। अभी तक मुझे BDO से बहुत बार मैंने डिस्कस भी की, भैया जिसको हमें आए हुए देना है वो हकदार को मिलना चाहिए, SBM देना है वो हकदार को मिलना चाहिए, काम देना है वो हकदार को मिलना चाहिए, लेकिन BDO टस से मस नहीं हुआ। तो उसके बावजूद हमारी माँ बहनों को आज मुझे मेरे पास इनपुट आ रहा है, मेरी माँ बहन बेटी को ब्लॉक में आए किसी काम के लिए, उसको भी दुश्वार बन गया वहाँ पे। उस BDO ने चंद लुटेरों को अपने साथ रखे हैं जो करप्शन करने में कोई कसर मेरे गरीब या और किसी को छोड़ नहीं रहा। आज इसलिए ये प्रोटेस्ट हमने किया, जब तक वो दरिंदा, जब तक वो लुटेरे करप्शन ऑफिसर है वो, जब तक वहां से वो सस्पेंड होके नहीं निकलेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी के साथ ही कश्मीर बुलेटिन खत्म करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।